પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 2 દિવસ વારાણસીના પ્રવાસે છે ત્યારે આજે તેઓ વિશ્વથી સૌથી મોટા બનેલા અત્યાધુનિક કોરિડોરનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે। સૌથી મોટો કોરિડોર દૃશ્યો અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે। અલગ અલગ વિન્ડોમાં જે તમામ દૃશ્યો સવારથી અત્યાર સુધીનો જે કાર્યક્રમ હતો એ દૃશ્યો અહીંયા તમે નિહાળી શકો છો કે પ્રધાનમંત્રી જ્યારે વારાણસી પહોંચ્યા ત્યાં તેમણે કાલ ભૈરવના દર્શન કર્યા બાદ તેમણે ક્રૂઝમાં સવારી પણ કરી, અલકનંદા ક્રૂઝમાં સવારી કરી અને તમામ જે જગ્યાઓની સમીક્ષા કરી। અત્યારે લલિતા ઘાટ તેઓ પહોંચી ગયા છે। 400 સાધુ સંતોને આ કોરિડોરના લોકાર્પણ દરમિયાન પરવાનગી આપવામાં આવી ગઈ છે। 400 સાધુ સંતો અને સાથે જ જે પુરુષો ત્યાં હાજર રહેવાના છે, જે અતિથિઓ હાજર રહેવાના છે, તેમની સાથે રહીને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી એ કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોરનું લોકાર્પણ કરશે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો આ ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ જે કહેવાય છે, જે કાશીના વિકાસમાં મોટી હરણફાળ કહેવાય, જે અત્યારે કાશીની કાયા પલટ કરતો અહીંયા દૃશ્યો દેખાઈ રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે વારાણસી પહોંચ્યા ત્યારે તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। રાજ્યના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ પણ ત્યાં હાજર હતા। સાથે જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ત્યાં પહોંચતાની સાથે જ લોકોનું અભિવાદન ઝીલ્યું। 2 હાથ જોડીને તેમણે લોકોનું અભિવાદન ઝીલ્યું। મોટી સંખ્યામાં લોકો પણ ત્યાં ઉપસ્થિત હતા અને પ્રધાનમંત્રીને આવકાર્યા હતા। વારાણસી જેમનો મત વિસ્તાર કહેવાય છે, સંસદીય વિસ્તાર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો, અને જ્યારે તે પોતાના વિસ્તારમાં પહોંચતા હોય છે ત્યારે હંમેશા તેમનું આ જ રીતે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવતું હોય છે અને આજે પણ એ જ રીતે એમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને લોકોએ પણ પ્રધાનમંત્રીને આવકાર્યા, એટલા જ દિલથી આવકાર્યા। સાથે જ દ્રશ્યો તમે જોઈ રહ્યા છો લલિતા ઘાટથી, જ્યાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચી ગયા છે અને અત્યારે થોડી જ વારમાં જે શુભ મુહૂર્ત છે એ શુભ મુહૂર્તમાં તેઓ કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોરનું લોકાર્પણ કરવાના છે। જ્યારે પ્રધાનમંત્રી વારાણસી પહોંચ્યા ત્યારના આ દ્રશ્યો આ તમે જોઈ રહ્યા છો કે કેવી રીતે ગુલાબના ફૂલથી તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, પાઘડી પહેરાવી તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। જોકે તેમનો સંસદીય વિસ્તાર છે, તેમને આવકારવા માટે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા, પરંતુ તમામ સુરક્ષા વચ્ચે પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, જે તેમના સ્વભાવમાં હંમેશા રહ્યું છે કે જ્યારે પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી લોકો વચ્ચે પહોંચતા હોય છે ત્યારે હંમેશા તેઓ એટલા જ દિલગીર થઈને તે લોકોનું અભિવાદન ઝીલતા હોય છે। દ્રશ્યો અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે કે જે ત્યાંના સ્થાનિક લોકો છે તે તેમને પાઘડી અને ખેસ પહેરાવી તેમનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે। વારાણસી જે એમનો મત વિસ્તાર છે ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે એ જ રીતે જે હંમેશા રીતે થતું હોય છે એ જ રીતે આ વખતે પણ તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। 2 દિવસ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વારાણસીના પ્રવાસે છે ત્યારે આજે પહેલો દિવસ જ્યારે તેઓ કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોરનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે। શુભ મુહૂર્તમાં આ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે। શુભ મુહૂર્ત જે બપોરના સમયનું છે, 20 મિનિટનું આ શુભ મુહૂર્ત માનવામાં આવ્યું છે। તે શુભ મુહૂર્તમાં આ લોકાર્પણ કરવામાં આવશે, જ્યાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે જ 400 સાધુ સંતો પણ હાજર રહેશે। એટલું જ નહીં, કેટલાક અતિથિઓ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત રહેશે। રાજ્યના अभिनंदन बाबा के धाम का, श्री काशी विश्वनाथ धाम का आज लोकार्पण, और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सहचर के रूप में इस पूरी यात्रा में हैं, वो पहुंच रहे हैं। और काशी इसलिए भी बेहद विशिष्ट है। अगर अटल जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने व्याख्यायित करते हुए कहा है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, फिर भय से व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय। पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो महामानव विषपान कर सकता है, उनके सबसे प्रिय नगरी है, उनके आवास की नगरी है और उनके धाम की नगरी है। विश्व कल्याण के लिए विषपान करने का की संस्कृति जो है वो सनातन संस्कृति में ही है, और वही भगवान शंकर जिनके क्रोधानल से संपूर्ण जगती क्षार क्षार हो सकती है, जिनके डमरू की प्रलय ध्वनि से भीषण संहार हो सकता है,
आज साक्षी बन रहा है। भगवान शंकर का ये धाम सृजन का, भगवान शंकर का यह धाम आज साक्षी है निर्माण का, नव निर्माण का, नव्य चेतन का, संकेंद्रण का, सनातन संस्कृति के ऐसे बिंदु का जहां पर आकर हर कोई श्रद्धावनत हो जाता है, हर कोई यहाँ पर विनयावनत हो जाता है और यहाँ से निकली हुई कांति लोगों की भ्रांति समाप्त करती है। यहाँ से निकला हुआ स्वर पूरे दुनिया में गुंजायमान होता है और यहाँ से आज विकास का स्वर दिख रहा है। यहाँ पर आज गंगा दिख रही हैं, यहाँ पर अलकनंदा दिख रही हैं, यहाँ पर भगवान शंकर दिख रहे हैं और साथ ही साथ बदलते भारत की विकास गंगा का रूप भी यहाँ पर दिख रहा है। और दिव्य धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संभव हो रहा है। उनकी परिकल्पना का, सृजन का मूर्त स्वरूप बन रहा है। The beauty and the grandeur of Sri Kashi Vishwanath Dham is immeasurable. Everything has been put in place to make it unique, grand and remarkable. બદલતા વિકાસના ભારતની આ તસવીરો, વિકાસનો ભારત જે હરણફાળ ભળી રહ્યું છે, વિકાસ ભારતનો થઈ રહ્યો છે અને દ્રશ્યો આજે કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોરનું જ્યારે લોકાર્પણ થઈ રહ્યું હોય છે તેનું સાક્ષી સંદેશ ન્યૂઝ પણ બની રહ્યું છે. બળેપણની અપડેટ આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે. 2 દિવસ વારાણસીના પ્રવાસે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, અત્યારે તેઓ થોડી જ વારમાં લલિતા ઘાટ પહોંચી જશે. તેઓ પહોંચી ગયા છે. બસ થોડી જ વારમાં જે લાલ જાજમ અહીંયાથી દ્રશ્યોમાં દેખાઈ રહી છે ત્યાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવશે. અને બીજી બાજુ દ્રશ્યો જે તમને દેખાઈ રહ્યા છે, જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વારાણસી પહોંચ્યા હતા ત્યારે તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. એ દ્રશ્યો છે. સાથે જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જે ગંગા ઘાટ પર જે ક્રૂઝ બનાવવામાં આવી છે, જે તમામ સુવિધાઓ ત્યાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે તેનું અવલોકન કર્યું હતું. સાથે જ તેમણે અલખનંદા ક્રૂઝમાં સવારી પણ કરી હતી અને જે પણ ત્યાં ઘાટ બનાવવામાં આવ્યા છે એ ઘાટમાં કોઈ ક્ષતિ છે કે નહીં, એ ઘાટ કેવી રીતે બનાવવામાં આવ્યા છે, કોઈને ત્યાં સમસ્યા સર્જાય એવી તો કોઈ કંઈ પણ એવું હોય તો એ તમામ મુદ્દે તેમણે ખુદ સમીક્ષા કરી હતી અને દેખરેખ રાખી હતી. અને સાથે જ તેમણે તમામ જે ઘાટ બનાવવામાં આવ્યા છે એ ઘાટનું અવલોકન કર્યું હતું, જેથી કરીને જે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ જેને કહેવાય છે એ ડ્રીમ પ્રોજેક્ટમાં કોઈ પણ પ્રકારની ક્ષતિ ના રહી જાય તે માટે ખુદ પ્રધાનમંત્રી મોદી અને ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ જેમણે અલખનંદા ક્રૂઝમાં સવારી કરી અને તેની સમીક્ષા કરી. સાથે જ કાશીના હવે કાયા પલટ થઈ રહી છે. ऋषि कुमार इस वक्त प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक. भारत माता की तस्वीर, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति, बगल में ही आदिशंकर की मूर्ति. ये सब प्रतीक भले ही हों, लेकिन ये प्रतीक आपको एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाते हैं. वो लक्ष्य इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो स्वयंभू लिंग, जिसके शिखर दर्शन करने मात्र से आपको लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है. अगर आप स्वयं धाम में नहीं पहुंच पाए तो कहते हैं अगर आप केवल मंदिर का शिखर दर्शन ही कर लें तो आपको संपूर्ण फल बाबा विश्वनाथ के दर्शन का मिलेगा. ऐसा मैं काशी खंड स्कंद पुराण के में वर्णित उन श्लोकों के आधार पर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप जितने लोग भी इस वक्त इस भव्य दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आप सभी को भगवान श्री विश्वेश्वर के दर्शन का फल प्राप्त हो रहा है. और ये तपस्या की भूमि, ये समर्पण की भूमि, ये त्याग की भूमि, जहां पर मनुष्य नहीं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी जंगम प्राणी हैं, यहां पर आकर के कुछ भी त्याग करते हैं वो सब कुछ मोक्ष. माननीय मुख्यमंत्री महोदय और बनते हुए सभी लोग एक स्वर में ये कहते हैं, इस वक्त कहते हुए सुनाई दे रहे हैं एक दूसरे से. इस वक्त आप देख सकते हैं ललिता घाट की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी को लगाने के लिए मां गंगा के अंदर जा रहे हैं. निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ऐतिहासिक और वही एक आस्था की डुबकी, क्योंकि ये मान्यता है किस प्रकार से मां गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ के चरणों में गंगा जल को अर्पित किया जाता है और यही उस पूरी आस्था का एक पड़ाव का एक बड़ा केंद्र होता है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आस्था की डुबकी लगाने के लिए मां गंगा में मौजूद हैं। मां गंगा को आत्मसात करना, उनके चरणों में जाना, श्री चरणों का आशीर्वाद लेना, और ये एक पूरी विधि विधान का एक अपने आप में एक बड़ा संगम के तौर पर देखा जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री ने वहां पर भी आस्था की डुबकी का आनंद लिया था, वहां पे उसका आशीर्वाद लिया था। और अब काशी विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना, पूरी आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में, और यहाँ पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना। और साथ ही साथ वहाँ पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है, वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है। जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है। और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं, ये एक संदेश भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इस पूजा माध्यम को, भाव को दर्शाते हुए, और निश्चित तौर से भगवान शिव, भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, और वहाँ पर वो उनके हाथ में जो कलश है निश्चित तौर से इसमें वो जल भरेंगे और बाबा को वो जल चढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक मान्यता है, ये एक आस्था है। और अपने आप में जब सूर्य को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, रोली चंदन वंदन अर्पित किया जाता है, उन पे जल अर्पित किया जाता है, तो सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य का जो तेज है वो आप में समाहित होता है। निश्चित तौर से ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी अपने आप में है। जगत गुरु की संकल्पना पर को साकार किया जा सके। और अगर इन दृश्यों को देखें तो अटल जी ने कहा है आज सिंधु में ज्वार उठा है, लेकिन यहाँ कहना पड़ेगा कि आज गंग में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। माँ गंगा की गोद में अवगाहन करते हुए, माँ गंगा की गोद में स्नान करते हुए, माँ गंगा की गोद में इस समय जलार्पण करते हुए समूचे देश की ओर से अनेक हुतात्माओं को, शहीदों को तर्पण करते हुए, समूचे गंगा में भगवान विश्वनाथ के धाम का परिभ्रमण करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधनारत हैं, एक कर्मयोगी साधनारत हैं। और ये तर्पण की स्थिति है अनेक शहीदों को, अनेक हुतात्माओं को, अनेक महामानवों को, जिन्होंने सनातन संस्कृति, भारत की एकता और अखंडता, भारत की भौगोलिक विस्तार, भारत की सुरक्षा, भारत की संरक्षा, भारतीयता के संरक्षण, आध्यात्मिकता के पुष्पन और पल्लवन के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। तो गंगा स्नान के बाद इस समय पूजन, गंगा में अवगाहन, गंगा की गोद में अवगाहन, गंगा की गोद में जलाभिषेक करना और यहाँ से जल लेकर शंकर जी को चढ़ाना वो संभव हो सका है। और ये अद्भुत दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जलार्पण कर रहे हैं कोटि कोटि भारतीयों की ओर से अनेक हुतात्माओं को, जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण सर्वस्व समर्पित कर दिया। It is indeed a historic moment, and we are fortunate to witness this day in the લલિતા ઘાટ પર પ્રધાનમંત્રી આસ્થાની ડૂબકી લગાવી અને કાશી વિશ્વનાથ ગયેલા પહેલા આસ્થાની ડૂબકી લગાવી હતી। આસ્થા અને વિશ્વાસ પીએમનો અહીંયા સ્પષ્ટ આ દેખાઈ રહ્યો છે। દ્રશ્યો સીધા જ કાશી વિશ્વનાથ લલિતા ઘાટથી આ દ્રશ્યો આવી રહ્યા છે, જે ગંગા નદીમાં જ્યાં કચરાના ઢગલા દેખાતા હતા તે હવે એકદમ ચોખ્ખી છે, લોકો ગમે ત્યારે જઈ શકે છે। આ સંદેશ પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ભારતવાસીઓને આપી રહ્યા છે। દ્રશ્યો સીધા જ લલિતા ઘાટથી તમને દેખાઈ રહ્યા છે, જ્યાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સૂર્યને જળ અર્પણ કર્યું અને આસ્થાની ડૂબકી પણ લગાવી। ભારતની એકતા અને અખંડિતતાના દર્શન અહીંયા થઈ રહ્યા છે।
ગંગાના ખોળે દરેક માણસ જવા ઈચ્છે છે અને જ્યારે તે જાય ત્યારે તેને એ ગંગા માની અનુભૂતિ થતી હોય છે અને જ્યારે પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના આ દ્રશ્યો તમે જોઈ રહ્યા છો, श्रद्धा की आस्था के साथ में डुबकी लगा सकता है। खुद प्रधानमंत्री ने वहां पे जो आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धा की जो डुबकी लगाई है, ये अपने आप में बताता है कैसा शुद्ध निर्मल जल आज वहां गंगा में मौजूद है। और मां गंगा की गोद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर मंत्रोच्चार करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, अर्चन करते हुए, जल तर्पण करना अपने आप में ये तमाम प्रकार के जो काम है, ये एक शक्ति को संचारित करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब भगवान सूर्य को जल चढ़ाया, मां गंगा को का आह्वान किया, तो ये तमाम जो शक्तियां, इस प्रकार की अलौकिक शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद होती हैं, हमारे चारों तरफ मौजूद होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मसात होती हैं इस प्रकार के तमाम कार्यों से। और निश्चित तौर से इस प्रकार के कार्यों से जब देश के प्रधान सेवक में शक्ति का संचार होता है, तो उससे पूरे राष्ट्र का भला होता है, उसके राष्ट्र का हित साधता है। निश्चित तौर से ये तमाम जो क्रियाकलाप, ये जो कार्य योजनाएं जो दिखाई पड़ रही हैं, उसमें इन सब चीज़ों का एक बड़ा महत्व है। भगवान शिव का आह्वान करना, भगवान सूर्यदेव का आह्वान करना, माँ गंगा की आरती करना, और हाथ में इस वक्त प्रधानमंत्री के माला, और उसको वो कहीं ना कहीं अर्पण करते हुए हर रूपां सेन्दुकोटिरचूडां कलितसितदुकूलां जाह्नवीतां नमामि। माँ गंगा श्वेत मकर, जिसे हम मगरमच्छ के रूप में जानते हैं, उस पर विराजती हैं। वो शुभ्र वर्ण वाली हैं, 3 नेत्रों वाली हैं, क्योंकि भगवान शिव का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है वो सभी त्रिनेत्र हो जाते हैं। ब्रह्म का नेत्र चक्षु खुल जाता है। स्वयं माँ गंगा के भी 3 नेत्र हैं। उनके 2 हाथों में भरे हुए कलश और 2 हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए हैं। भक्तों के लिए परम इष्ट हैं। वो स्वयं ब्रह्मा का रूप हैं, विष्णु का रूप हैं, भगवान शिव का रूप हैं। यानी तीनों का रूप, तीनों के कार्य करने वाली, मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और सुंदर श्वेत वस्त्रों से विभूषित माँ गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये माँ गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें आप स्नान करते हुए माँ की उस छवि का दर्शन करते हैं। उसके बाद देवनदी श्री गंगा, जो ब्रह्मांडम खंडयंतीम हर्षिरस जटावल्लिमुल्लासयंतीम स्वरलोकादापतंतीम कनकगिर गुहगंड शैलास्खलंतीम क्षोणी पृष्ठे लुठंतीम दुरितचय चमूर निर्भरै भर्तयंतीम पायोधीम पूरयंतीम सुरनगर सरित पावनीम नह पुनातु, जो ब्रह्मांड का भेदन करके निकलती हैं। महादेव जी की जटा लता को उल्लसित करने वाली, स्वर्ग लोक से गिरने वाली, सुमेरु की गुफा और पर्वतमाला से अवतरित होने वाली, पृथ्वी पर विहार करने वाली, पाप समूहों की सेना को कड़ी फटकार देने वाली, समुद्र को भरने वाली और देवपुरी की पवित्र नदी गंगा हमें पवित्र करें। इसी संकल्प के साथ संपूर्ण वस्त्रों में सनातन विधि विधान के साथ मां गंगा में स्नान, मां गंगा में जप, और फिर वहां से भगवान श्री विश्वेश्वर के जलाभिषेक के लिए जल लेते हुए और मुख से शब्द ब्रह्म का नाद करते हुए, नमः शिवाय का नाद करते हुए, मां गंगा को याद करते हुए, काशी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अजय, आपने एकदम सही कहा। ये अकल्पनीय क्षण है, ये अद्भुत क्षण है, अलौकिक है, इतिहास में अमर है, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर माँ गंगा की गोद में माँ गंगा का अवगाहन किया, स्नान किया, और अब जल लेकर वो जलार्पण करने के लिए चल चुके हैं बाबा धाम के लिए। ये संकल्प के सिद्धि का समय है। ये कर्मयोगी का आदि योगी को कार्यांजलि देने का क्षण है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये विशिष्टतम अध्याय है, स्वर्णिम अध्याय है सनातन संस्कृति के इस पूरे कालखंड में, क्योंकि बाबा के दिव्य धाम का, भव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है समूचे देश के लिए, समूची दुनिया के लिए। ये जो स्वर्ण शिखर आप देख रहे हैं, ये स्वर्ण शिखर महाराजा रंजीत सिंह द्वारा दिए गए, दान में दिए गए शिखर आज के इस आयोजन में
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જે લલિતા ઘાટ પર પહોંચ્યા અને તેમણે આસ્થાની ડૂબકી લગાવી માં ગંગાના ખોળે તેમણે જળ અર્પણ કર્યું, સૂર્યને પાણી અર્પણ કરવામાં આવ્યું, જળ અર્પણ કરવામાં આવ્યું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જેમ ધાર્મિક પરંપરા પ્રમાણે તેમણે આ જળ અર્પણ કર્યું અને બાદમાં કહેવાય છે કે માં ગંગાની ડૂબકી લગાવ્યા બાદ જ વિશ્વનાથના ચરણોમાં જળ ચડાવી શકાય અને એ જ ધાર્મિક જે તમામ જે કરવાની હોય છે, જે ક્રિયાઓ કરવાની હોય છે, તમામ પતાવીને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી માં ગંગાનું જે જળ લઈને પરત હવે વિશ્વનાથ કોરિડોર જે લોકાર્પણ કરવાનું છે ત્યાં પહોંચ્યા.